नमस्कार, 99 न्यूज़ की शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। कोलकाता नगर निगम के 36 नंबर वार्ड में स्थित टाकी स्कूल के पास आज सुबह मतदान के दौरान बमबाजी में एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति इलाके का मतदाता बताया जा रहा है। वो मतदान करने आया था, उसी समय बमबाजी की चपेट में आ गया। तृणमूल कांग्रेस ने बमबाजी के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है, जबकि कांग्रेस ने पलट आरोप करते हुए कहा कि तृणमूल के लोगों ने बमबाजी की है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। মুহূর্তে কথা বলতে পারিনি, তারা ইনজিওর্ড রয়েছেন, কিন্তু আমরা নিজেরা ভোটারদের সাথে কথা বলেছি। ভোটাররা তারা বলছেন যে না, তাদের মধ্যে কোনো ভয় বা কিছু পাচ্ছেন না। তাদেরকে বলা হয়েছে ভোট দেওয়ার জন্য এবং ভোটাররা ভোট দিচ্ছেন। আপনারা দেখতে পারেন। Before the bombing happened, sir, what was the strength of your deployment? How many people forces were there? The strength was as per the arrangement. But was it enough, sir? How many people were injured? It was enough, but this place is far from the polling premises. Okay, and the police personnel of the polling premises are supposed to guard the polling premises first. Was it a fallout of clashes between workers, or how it happened, sir? No, it has happened. That is actually under investigation. We are inquiring into it. What was the exact procedure, who did this, how it was happened. It can be answered only after scrutinizing the footage or who has been seen the entire scene. कोलकाता नगर निगम के चुनाव में धांधली का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज शिल्पांचल में सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा शिल्पांचल में कई जगहों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जीटी रोड पर गिरजा मोड़ को जाम कर बवाल भी काटा। मौके पर जिला संयोजक शिवराम बर्मन, अरिजीत राय, सुदीप चौधरी, आशा शर्मा, उपासना उपाध्याय, विवेकानंद भट्टाचार्य, संतोष सिंह लोग मौजूद रहे। আপনারা দেখছেন সমস্ত মিডিয়াকে সারা পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষ দেখছে আজকে যে ইলেকশন হচ্ছে। ভাবতে পারা যায় সকাল 6টা-7টায় ইলেকশন শুরু হয়েছে, 10 মিনিট যায়নি ছাপা শুরু হয়ে গেছে। মাহলবীর দাঙ্গা, গুন্ডাগিরি, বোমবাজি এইভাবে চলছে। ভাবতে পারা যায় আমরা কোথায় বাস করছি। আমরা বড় বড় কথা বলি, এই হলো তৃণমূল সরকার। 213খানা সিট পেয়ে ওরা বিধানসভায় ক্ষমতায় এসছে। যদি এত ভালো কাজ করে থাকে কেন ছাপা হচ্ছে আজকে? কেন মারপিট, বোম চলছে, গুলি চলছে, লোকে পা উড়ে গেছে ওখানে বোম ফেলে? ভাবতে পারা যায়? আমরা রাজনীতির কথা বলি, আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি। আমরা কোথায় গণতন্ত্র আছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে? সারা কলকাতাতে যেভাবে ভোট হয়েছে আজকে আমরা লজ্জায়। 2017-তে ইলেকশনে দুর্গাপুরে আমরা দেখেছিলাম যেভাবে লাগাম সন্ত্রাস। रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन ने रानीगंज के बड़ा बाजार और तिलक बाजार मोड़ पर एक सभा का आयोजन किया। व्यापारियों की मुख्य मांग है कि कपड़े में जीएसटी को 5 से बढ़ाकर 12% किया गया है, उसे कम किया जाए, क्योंकि वैसे भी कपड़े की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। इसके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जीएसटी काउंसिल के सदस्यों को 200 पोस्टकार्ड भेजे गए हैं। इन पत्रों के जरिए जीएसटी बढ़ाने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई है। इस आंदोलन को चैम्बर ऑफ कॉमर्स और क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा है कि अगर 1 जनवरी से उनकी मांगें नहीं मानी गई तो इन तीनों संगठनों के साथ बातचीत कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस मौके पर सलील सिन्हा, तारकेश्वर, संजय खेतान, ओम प्रकाश सोमानी, मलय सिन्हा, संदीप सोमानी उपस्थित रहे। রানীগঞ্জ ক্লথ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যেটা প্রস্তাব করেছে জিএসটি রেডিমেড এবং কাপড়ের উপরে 5% থেকে 12% যে বৃদ্ধি, তার আমরা প্রতিবাদ করছি। এই প্রতিবাদে আমরা একটা আজকে র্যালি বার করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রানীগঞ্জ থানা আমাদের পারমিশন দেয়নি করোনার জন্য। সেই জন্য আমরা এই প্রতিবাদ সভা করেছি। এই সভায় আমরা রানীগঞ্জের সমস্ত বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং আপামর জনসাধারণকে আমরা জানাচ্ছি, এই গত 3 মাসে কাপড়ের যে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং এই आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने सेव ड्राइव सेव लाइफ परियोजना के तहत अभियान चलाए हैं। ये अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। इन कार्यक्रमों के जरिए शिल्पांचल के लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। आज रानीगंज टीबी अस्पताल के निकट रानीगंज ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया। इस अभियान के तहत लोगों को
लिफलेट बांटे गए। इस लिफलेट में ट्रैफिक जागरूकता को लेकर संदेश लिखे हैं। इनमें हेलमेट पहनना, नशे में गाड़ी ना चलाना, सीट बेल्ट बांधना जैसे कई प्रमुख संदेश लिखे हैं। नितूरिया के पुराना सालतोड़ में मनरेगा के तहत बनाने वाले 3 PCC सड़क का नितूरिया पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांतिभूषण प्रसाद यादव ने नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इन सड़कों का निर्माण 10.5 लाख रुपए की लागत से होना है। सड़कों के बन जाने से आसपास के कई गांवों के लोगों को राहत मिलेगी, जिससे ग्रामीणों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली। आसनसोल मारवाड़ी महिला समिति महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ब्यूटी टिप्स का प्रशिक्षण दे रहा है। इस मुहिम में बंगाल की ख्याति प्राप्त मेकअप आर्टिस्ट सुनीता भट्टाचार्य ने कार्यशाला का आयोजन कर महिलाओं को ब्यूटी टिप्स की प्रशिक्षण दी। कार्यशाला का शुभारंभ रंगारंग उद्घाटन के साथ शुरू किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में चाइना बैनर्जी, कुल्टी मदद फाउंडेशन महिला प्रशिक्षण केंद्र की डॉक्टर ममता मिश्रा, रिंकू चौबे, समाज सेविका आशा शर्मा, अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति के मधु डुमरेवाल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेकअप सेमिनार, हेयर स्टाइल, एडवांस हेयर स्टाइल का सेमिनार रखा हुआ है और इसका रखने का मूल उद्देश्य है कि अभी हम लोग आसनसोल में और ब्यूटी इंडस्ट्री में जो जरूरतमंद लड़कियां हैं वो आना चाहती हैं, मगर उनके पास पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं तो कैसे हायर एडुकेशन ले, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि बाहर से एडुकेटर बुलाया है एडवांस हेयर स्टाइल का, जो नामी गिरामी सुनीता भट्टाचार्य दमदम से आई हैं और ये बहुत कॉस्टली आर्टिस्ट हैं। तो हम लोग कोलकाता में नगर निगम चुनाव में हुई हिंसा के विरोध में भाजपा ने आज रानीगंज के रानी सियाय मोड़ के पास NH को जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राजेश मंडल, मदन त्रिवेदी, डॉक्टर बिजन मुखर्जी समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मदन त्रिवेदी ने कहा है कि आज कोलकाता में गणतंत्र की हत्या की गई है। आज जिस तरह से कोलकाता में नागरिक अधिकारों का हनन किया गया है वो शर्मनाक है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले चुनाव में भाजपा ने आसनसोल के 66 वार्डों में बढ़त हासिल की। ऐसे में अगर नगर निगम चुनाव में TMC हिंसा का सहारा नहीं लेती तो भाजपा ही बोर्ड गठित करती। जो है कलकत्ता में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और गणतांत्रिक अधिकारों का वहाँ पे हनन किया जा रहा है। पूरे कलकत्ता के जो नागरिक हैं वो अपने नागरिक अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं और जगह जगह पर संत्रास हो रहा है और ये चुनाव जो है एक प्रहसन बनकर रह गया है। इसी के विरोध में आज पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जगह पे प्रत्येक विधानसभा में पथ अवरोध कर रही है। उसी सिलसिले में आज रानीगंज और जामुड़िया को मिला करके इस रानी शहर मोड़ में यह पथ अवरोध किया गया। आसनसोल के वार्ड 67 स्थित शीतला मंदिर गली, विश्वरूप गली और आरा डंगाल मस्जिद गली इलाके में आज से पानी की पाइपलाइन लगने का कार्य शुरू हुआ है, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर है देखने को मिली। लोगों ने बताया है कि हम लोग कई सालों से पानी की समस्या से गुजर रहे थे, जिसका अब समाधान हो जाएगा। लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। यहाँ पर कई दिनों से लगभग 6 महीना से यहाँ पे पानी के कनेक्शन का काम बंद था। अमृत योजना 6 महीना पहले लोकसभा इलेक्शन से पहले ही पानी का कनेक्शन पानी का पाइप बिछा था यहाँ पे, लेकिन अभी तक यहाँ पे कनेक्शन हुआ नहीं है। कई इलाकों में जो पाइप का लाइन का काम यहाँ पे हुआ ही नहीं है अभी तक। तो हम लोग
6 महीना पहले और 6 महीना के दौरान में भी बहुत मास पटिशन और मेमोरेंडम हमारे आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को हम लोग सौंप पश्चिम बंगाल के कानून एवं निर्माण मंत्री मलय घटक, आसनसोल उत्तर के विधायक अमरनाथ चट्टोपाध्याय और आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के पदाधिकारियों ने आज सड़कों पर झाड़ू लगाकर सफाई की। मंत्री इससे पहले मलय घटक ने नगर निगम के सामने झांकी का उद्घाटन कर 7 दिवसीय विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की। मंत्री और निगम के पदाधिकारियों ने इस दौरान निगम की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। একটু বড় 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 মোবাইলটা সব পিছে গেছে না और आसनसोल के ऊपरी पावना পৌর নিগম এবং রয়েছেন দিলীপ বন্ধু একটু বড় 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 মোবাইলটা সব পিছে গেছে না और आसनसोल के ऊपरी पावना आसनसोल लोको ग्राउंड में आज आसनसोल प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। ये मुकाबला ब्रांड मलिक और पायल मल्टी प्लाजा के बीच खेला गया, जिसमें ब्रांड मलिक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 82 रन बनाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी पायल मल्टी प्लाजा ने 9 ओवर 1 गेंद में लक्ष्य को हासिल कर खिताब अपने नाम कर लिया। लीग के फाइनल मैच के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज के CMD श्याम पांडे और INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक उपस्थित हुए। दोनों ने संयुक्त रूप से विजेता टीम को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। विजेता टीम को 80,001 रुपये और रनर अप टीम को 60,001 रुपये इनाम के रूप में मिला। एक मिनट सर, ऑनर को आगे रहने दीजिए। पीछे स्पोर्ट एसोसिएशन थैंक यू। আমরা আগামী দিনে আরো আপনাদের हम सबको इनका आभार व्यक्त करना चाहिए 99 बिल्डर्स और 99 बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का सी ধন্যবাদ উৎপল দা। What a player he is, what a talent he has, fantastic। फाइनल मैच हुआ है, ये अद्भुत नज़ारा रहा, खेल के मैदान में भी और खेल के मैदान के बाहर भी लोगों में उत्साह और एनर्जी बहुत दिखा। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज़ें हैं जो इस क्षेत्र के युवाओं को प्रोत्साहित करता है और उन्हें इस तरह का इन्वॉल्वमेंट में बढ़ाता है। तो मैं इस कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे भी इस तरह का प्रयोजन और प्रायोजक को करें और इसमें आगे बढ़ें। हम 99 ग्रुप की तरफ से उनके सहयोग और समर्थन में हमेशा साथ रहें। আসলে প্রথম আসানসোল প্রিমিয়ার লিগ এই টুর্নামেন্টের এখানে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হলো এবং আজকে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করা হলো। আপনারা দেখলেন যে এখানে যে টুর্নামেন্ট হয়েছে খুব ভালো খেলা এখানে হয়েছে যেটুকু আমরা শুনলাম এবং এখানে প্লেয়াররা খুব ভালো পারফরমেন্স করেছে।
বিশেষ করে আসানসোল শিল্পাঞ্চলে এই ধরনের যে ফ্র্যাঞ্চাইজি করে ক্রিকেট এই প্রথম হয়েছে এবং আসানসোল প্রিমিয়ার লিগ যে টুর্নামেন্ট সেই টুর্নামেন্ট আজ থেকে এই বছর থেকে শুরু হলো, আগামী দিনে আরও ভালো খেলা হবে। 99 न्यूज़ की शिल्पांचल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। धन्यवाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।